Okay, so that's great. I hope my voice is clearly audible. Now let me just present the screen. So जैसे कादम्बरी ने कहा कि उसको लीनियर डिवीजन मेथड समझ में नहीं आई, और कोई है जिसको लीनियर डिवीजन मेथड समझ में नहीं आई है, या फिर और कोई मेथड है जो समझ में नहीं आई है? सो जब तक तुम लोग मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा. ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेल मी एवरीथिंग. ओके, सो आई गेस हमने इस प्रैक्टिस सेट में से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी किए थे. एनीवन रिमेंबर्स? इस प्रैक्टिस सेट 3.3 में से कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, एंड आई थिंक आई हैड आस्क्ड यू टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस एज योर होमवर्क, राइट? सो एनी हेल्प नीडेड इन एनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, लाइक किसी ने सॉल्व किया हो क्वेश्चन और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वी कैन सॉल्व इट, or is it okay, can we take the next topic straightforward? Next topic, is that okay? Right, no problem. So chalo, ठीक है. तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, so that we can take the next topic, right? So just a second. So our next topic is value of polynomial. So I guess, right, yeah, just a second. Sir, I didn't understand synthetic division. Okay, no problem. Yeah, this happens, um, there's no issue in not understanding, but you should ask. Okay, so that's no problem. We will take both the division, linear division as well as synthetic division. Okay, so we'll revise it, no problem. So value of polynomial, so what exactly it means? If a polynomial, in a polynomial, if variable is replaced by a number, then we get the value of that polynomial. For example, if we replace x by 2 in polynomial x plus 7, then we get 2 plus 7 is equals to 9, which is the value of that polynomial, right? So if px is a polynomial in x, then the value of polynomial for x is equals to a is written as p of a. So students, इसमें करना क्या है? किसी को समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है? We have to do one thing, we have learned about polynomials. हमें polynomials क्या होता है ये अच्छे से पता है, right? So let us suppose we have given one polynomial, and in that polynomial we have to put some value, like it can be 0, 1, 2, 3, anything. Okay, so when we put the value in that polynomial, so we get a constant number, or a value, a numerical value, right? So that value is nothing but the value of polynomial. So it is as easy as that, right? So okay, so let me just take questions so that you can understand the things. Now, first question is, in this first question, you can see a first solved example, that find the value of polynomial p of x is equals to 2x square minus 3x plus 5, right? So, and we have to put the value of x is equals to 2. So, what we have to do here? We just have to put the value of x is equals to 2, right? Now, when we put the value of x is equals to 2, then we have to write the polynomial as p of 2, right? See, x is equals to 2, that means it was p of x, so we will write p of 2. So 2 as it is, in place of x we put 2, दैट इज 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 2 स्क्वायर लिखा, माइनस 3 जो है वो एज इट इज, एंड इनटू एक्स, दैट इज एक्स की जगह पे हम फिर से 2 लिखेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म 5 है वो फिर से 5 ही रहेगी. So 2 into 2 square is 2 into 4, minus 3 into 2 is 6, plus 5. So if we calculate this, our value will be like this. P of 2 will be equal to 7.
Now, can you calculate this? Like polynomial is this one only, and the value of x is 3. Put the value of x as a 3 and find out the value of that polynomial. Can you students calculate this, please? Please calculate the value of this polynomial for x is equals to 3. Okay. So those who are not understanding, I will solve you for, see, p of 3, हमें यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना है, राइट? सो 2 की जगह पे 2 ही रहेगा, x की जगह पे मैं 3 लिखूंगा, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 3 एज इट इज, और x की जगह पे मुझे फिर से 3 लिखना है प्लस 5, राइट? सो 2 into 9 is 18 and 3 into 3 is 9 and plus 5 as it is. So 18 minus 9 is 9, 9 plus 5 is 14. So how many of you got the answer? Okay, Kadambari has got the answer. 14. Right, 14 should be the answer. सबका आंसर 14 आ रहा है? किसी का आंसर कुछ अलग, या फिर किसी का आंसर आ ही नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना? Why others are not responding? बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ कादम्बरी ने ही आंसर दिया, आयुष ने आंसर दिया, अभी सब लोगों को आंसर देना है ना, जिसका आंसर आया सब लोगों को आंसर देना ही है, नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि आप लोगों ने सॉल्व किया है या फिर नहीं? ठीक है, चलो। तो अभी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो अच्छे से समझ में आ गया है, राइट? सो इसमें भी सब, मतलब जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, उसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सॉल्व एग्जांपल्स आप घर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 3.4, राइट? सो फाइंड, so for x is equals to 0, find the value of polynomial x square प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। सो यहाँ पे हमारा जो पोलिनोमियल है p ऑफ x, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखना है? 0 रखना है, राइट? सो कैलकुलेट इट देन एवरीवन। चलो ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब लोगों को आंसर्स आ रहे हैं ना, सो यू कैन फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर। ऑल राइट, डू इट, take your time, 1 or 2 minutes. Okay, Kadambari has got the answer, that is, for the first question we have answer as 5. Very good, Kadambari. You have to write answers like this. Okay, और किसी का आ रहा है 5? सी, वेरी इजी, इजंट इट? एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने 0 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 5x की जगह पे हमने 0 रख दिया तो ये माइनस 0 हो जाएगा, और बचा क्या? सिर्फ 5 ही तो बचा ना। सो ये दो टर्म्स तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम देख के ही बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, राइट? नाउ सेकंड वन, स्टार्ट विथ सेकंड वन। चलो सब लोग सेकंड वन सॉल्व करो। एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व सेकंड वन। अभी मैं सबके आंसर चेक करूंगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? अभी कोई जाएगा नहीं, जब मेरे बोलने के बाद में ड्रॉप कर लेते कुछ स्टूडेंट्स। जस्ट अ सेकेंड। आयुष, बोथ आयुष, कादम्बरी, वैष्णवी, वेदांत एंड विशाल, सब लोगों को आंसर देना है। सेकंड वन सॉल्व करो। सेकंड वन में क्या है? p of y is equals to y square minus 3 under root 2y plus y 1, then find p of 3 under root 2। या तो यहाँ पे हमें करना क्या है? y की जगह पे सिर्फ 3 अंडर रूट 2 लिखना है। y की जगह पे हमें 3 अंडर रूट 2 की वैल्यू पुटअप करनी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर, दैट्स इट। चलो अभी मैं सॉल्व करने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन आंसर तो आपको ही निकालना है, ठीक है? Alright, somebody has got the answer, I think. Just a second. Okay, Ayush has got the answer 1. Ayush, very good. Let me just check. I'm not sure whether this answer is 1 or anything else. Okay, both Ayush have got the answer, that is 1. Kadambari, can you solve it? Vaishnavi, Vishal, any difficulty? समझ में नहीं आया? Vedant, see, if you stay silent, I won't understand anything कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं, आपको बताना पड़ेगा। I didn't understand it. Okay, okay, no worries. We'll solve it, Kadambari. No problem. No problem. All right. ठीक, चलो। So how do we solve it? See, हमें सिर्फ p of
3 अंडर रूट 2 निकालना है। तो यहाँ पे y की जगह पे हमें क्या रखना है, y की जगह पे 3 अंडर रूट 2 रखना है ओनली। सो सी फर्स्ट टर्म इज वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 3 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, राइट। अभी माइनस माइनस का सिंबल एज इट इज, 3 अंडर रूट 2 जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, मैं वही का वही लिख रहा हूँ। और ये जो y है ना, तो इस y की जगह पे भी हमें 3 अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा +1। अभी देखो, दिस इज 3 अंडर रूट 2 square and 3 अंडर रूट 2 into 3 अंडर रूट 2, it is again a square but it is minus, so पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 ही तो बचा ना, isn't it? So 1 is the answer. I hope you understand now, right? Good. ठीक है, चलो next one. If p of m is equals to m cube plus 2m square minus m plus 10, then p of a plus p of minus a is equals to what? So ये जो एग्जाम्पल है ये हमें थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? सो सबसे पहले हमें क्या करना है, p ऑफ a निकालना है स्टूडेंट्स। सो हाउ डू वी कैलकुलेट p ऑफ a? तो m की जगह पे हमें क्या वैल्यू रखनी है, m की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है a रखनी है। सो p ऑफ a विल बी इक्वल टू m क्यूब है तो यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, राइट। माइनस 2m स्क्वायर है तो ये, सॉरी 2m स्क्वायर है तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस m है तो माइनस a हो जाएगा, और लास्टली वी हैव +10, राइट। तो this is p of a. Now if we want to calculate p of minus a, then it would be, see अभी यहाँ पे हमें m की जगह पे माइनस a रखना है। सो माइनस a का क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ माइनस a? माइनस a का क्यूब क्या होगा, माइनस a क्यूब इटसेल्फ, माइनस a क्यूब, माइनस a क्यूब कादम्बरी, राइट ना। माइनस का सिंबल आ जाएगा और a क्यूब एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे मुझे माइनस a क्यूब लिखना पड़ेगा, राइट। अभी 2m स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर ही होगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर नहीं होगा। किसी को कोई डाउट? इट विल बी a स्क्वायर नॉट माइनस a स्क्वायर। माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही होगा। माइनस a का क्यूब जो है वो माइनस a क्यूब होगा, लेकिन स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। ठीक, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो इट वुड बी अगेन प्लस 2a स्क्वायर, ये जो टर्म है ना प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगी। अभी ये जो माइनस m की टर्म है ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, व्हाट इट विल बी, माइनस m, माइनस m, m की जगह पे हम माइनस a रख रहे हैं, मतलब माइनस ऑफ माइनस a, दैट मीन्स इट विल बी प्लस a, वेरी गुड। सो इट वुड बी प्लस a, एंड इस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये +10 एज इट इज रखना है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इसको और इसको हमें ऐड करना है। सो ऐड करेंगे तो a क्यूब की टर्म क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये a की टर्म नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कट जाएगी। अभी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर व्हाट इट इज, 4a स्क्वायर, एंड 10 प्लस 10 इज 20। सो 4a स्क्वायर प्लस 20 शुड बी द आंसर, 4a स्क्वायर प्लस 20 should be the answer. Got it? Was it difficult? Was it difficult? It is not difficult. Okay, you have to break down the example. Like यहाँ पे बड़ा एग्जाम्पल दिया है हमें, लेकिन हमने पहले क्या किया, p ऑफ a निकाला, बाद में p ऑफ माइनस a निकाला, एंड देन वी एडेड देम सिंपली। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बॉदर कि अभी सर हमें यहाँ पे a की वैल्यू दी है तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ m की जगह पे a रख दो, जो आता है वो आंसर लिखना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, चलो ठीक है। सो फोर्थ वन तो मुझे लगता है अभी सभी लोग सॉल्व करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फोर्थ वन सॉल्व करने में। चलो, आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन नाउ, फोर्थ वन सॉल्व करो, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई एम इरेजिंग दिस ऑल। ओके, सो ब्रिंग आउट योर पेन एंड नोटबुक
and solve the example. If p of y is equals to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7, then find p of 2. It is minus 11. Okay. Is that the answer for everyone? minus 11. Okay, so it has to be the answer for everyone, minus 11. ठीक है, चलो जिनको समझ में नहीं, वैसे तो सबको समझ में आया है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी we will solve it. ओके, सो यहाँ पे मुझे 2y क्यूब, y की जगह पे 2 रखना है, सो इज इक्वल्स टू 2y जो है वो 2 है तो उसका क्यूब करना है, माइनस 6y का स्क्वायर करना है, माइनस 5y की जगह पे सिर्फ 2 रखेंगे, एंड लास्टली वी हैव 7, राइट? सो 2 इंटू 2 क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट वुड बी 2 क्यूब? 2 का क्यूब क्या है एवरीवन? 8, इज इट? किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? 8 है, ओके। सो 2 इंटू 8 minus 6 into 4 minus 10 plus 7. So 2 into 8 is 16. 6 fours are 24 minus 10 plus 7. So 24 and minus 10 would be 34. So 16 plus 7 is 16 plus 7 is not 20. It should not be 21. Just a second. 16 plus 7 is 23 and it is minus 34, so minus 11 should be the answer, which is correct. minus 11 should be the answer. ठीक है, अभी किसी को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? So students, now one question for you. Okay, this is not question from your syllabus, but I'm damn sure that this question is helpful for you. Okay, so let us suppose I tell you that there is one quadratic equation. I hope you know what is quadratic equation, right? So if you have given the value and which is रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, आपको एक वैल्यू दी है और वो आपको बताया है कि वो वैल्यू जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी जब हम उस रूट को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लेस करेंगे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल? हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं ना, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल व्हेन वी पुट दैट वैल्यू इन दैट पॉलिनोमियल? ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे एक एग्जांपल लेने दो। ओके, चलो आई हैव, I will give one example, no problem. See, so मैंने आपको कहा कि एक पॉलिनोमियल है p of x that is x square plus 4x plus 4, ये आपका पॉलिनोमियल है, ओके, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज सिंपली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपको बोला कि x is equals to just a second, yeah, x is equals to -2, तो x is equals to -2 पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालो। तो please remember that x is equals to -2 is a root of that equation. X is equals to -2 is the root of that equation. Can you find out the value of this quadratic equation? Value of polynomial. Calculate. Calculate the value of that polynomial for x is equals to -2. -12, is it? Kadambari, -2 square is, -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। It is not -4, right? Do it again. Then do it again. -12 is wrong answer. बाकी लोग भी करना है, बाकी लोगों को भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। सब सबको वैल्यू निकालते आना चाहिए। Isn't it simple, students? Or do you think it is hard?
फोर कैसे कैसे फोर फोर कैसे आएगा? नहीं, फोर नहीं आएगा ना। सी, लेट मी जस्ट टेल यू अगेन। मुझे इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -2 रखना है, राइट? सो -2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 4 होगा। अभी -2 इंटू 4 क्या होगा? व्हाट वुड बी -2 इंटू 4? Yeah, the answer should be 0. Not -2 into 4 is 0, but -4 into -2 is -8, and this plus 4. So 4 plus 4 is 8, and this -8, so it should be 0. So remember one thing, when we say, when we have a quadratic equation or any other equation, कोई भी इक्वेशन है और हमें बताया गया है कि ये जो वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या फिर इस इक्वेशन का रूट है, दैट मीन्स जब वो वैल्यू हम उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है। दैट इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स इट। डू अंडरस्टैंड? जब भी हम किसी रूट की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गोइंग इन फर्दर क्लासेस। ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे रूट्स फाइंड आउट करने के। ठीक है, सो आई जस्ट थॉट कि अब मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिमाइंडर थ्योरम। Now, what is it? So we'll read through and then we'll try to understand what is remainder theorem. Just give me a second so that I can wipe this out. Okay, there is a relation between the value of p of x for x is equals to minus a into 1, that is p of minus a, and the remainder p of x is divided by x plus a. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन लेट्स लर्न द फॉलोइंग। तो अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन में हमें कुछ बताया है कि कुछ एक रिलेशन है वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स में, जो कि हम जब माइनस ए रखते हैं और जब हम उस पॉलिनोमियल को एक्स प्लस ए से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ रिलेशन है, लेकिन ऐसा कुछ हमें समझ में नहीं आया, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल take one example and then we'll try to understand what they are asking us to do, right? So just give me a second, then we can continue. Okay, just a second, students. Okay, so yeah, here we have a polynomial that is p of x is equals to 4x square minus x plus 2, and we have to divide this polynomial by x plus 1। ठीक है, सो यहाँ पे x प्लस ए के फॉर्म में अगर हमें कुछ दिया है तो वो है हमारा डिवाइजर, दैट इज x प्लस 1। सो हाउ डू वी डू इट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेंड इज 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, डिवाइजर इज x प्लस 1। तो आई थिंक मुझे लगता है कि विशाल को सिंथेटिक डिवीजन समझ में नहीं आई थी, राइट? और इज इट लॉन्ग डिवीजन मेथड? आई थिंक या इट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो यहाँ पे दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड और वी कैन रिवाइज द मेथड्स आल्सो, राइट? सो पहले जो हमें सॉल्व करना है, हमें इस मेथड से सॉल्व करना है। सो डिवाइजर हम यहाँ पे रखते हैं, डिवाइडेंड हम यहाँ पे रखते हैं, राइट? सो सबसे पहली स्टेप हमें करनी होती है डिवाइडेंड के पहली टर्म को, डिवाइडेंड के पहली टर्म को हमें डिवाइजर की पहली टर्म से डिवाइड करना होता है। तो डिवाइडेंड की पहली टर्म यहाँ पे क्या है? 4x स्क्वायर। डिवाइडेंड की पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे है 4x स्क्वायर और डिवाइजर की पहली टर्म है x, राइट? सो 4x स्क्वायर को अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपको बताना है। एंड जब मैं बता रहा हूं ना ये, तो स्टेप बाय स्टेप आप नोटबुक पे लिखो मेरे साथ। जो मैंने स्टेप बताया वो स्टेप आपने लिखना है, बाकी सारा मतलब एज इट इज बुक में से देख के नहीं लिखना है, ठीक है? जो स्टेप हम कर रहे हैं ना वो वही लिखना है। 4x आएगा, वेरी गुड कादम्बरी। सो 4x को हम क्या करते हैं? 4x को हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट? सो अब तक आपके नोटबुक पे आपने सिर्फ तीन ही चीजें लिखी है, कौन सी? ये डिवाइड एंड पॉलिनोमियल लिखा है,
डिवाइजर पॉलिनोमियल लिखा है, और यहाँ पे ऊपर आपने सिर्फ 4x लिखा है। ये तीन ही चीजें आपने लिखी है। ओके, सो अभी पहली टर्म को पहली टर्म से हमने डिवाइड किया, 4x आया। सो 4x से हमें इस x को मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या आएगा, 4x² आएगा। तो आपकी चौथी टर्म आ जाएगी, तीन टर्म तो आपने पहले लिखा था, तो 4x² आ जाएगा, पॉजिटिव 4x²। राइट, तो हमने 4x से x को मल्टीप्लाई किया, तो इस 1 को भी तो करना पड़ेगा ना, बराबर, इस 1 को भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो 4x मल्टीप्लाइड विद दिस वन, वी हैव अनदर 4x। तो आपके पास कौन से टर्म्स है अभी, डिवाइडेंड, डिवाइजर, 4x, एंड यहाँ पे 4x² प्लस 4x। राइट, सो अभी हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है, सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। सो साइन चेंज करने के बाद में ये पॉजिटिव 4x² नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 4x नेगेटिव 4x हो जाएगा। सो ये पॉजिटिव 4x² नेगेटिव 4x² कट जाएगा, यहाँ पे -x है, यहाँ पे -4x है। सो -x -4x इज -5x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हम सिर्फ -5x तक आए हैं, नहीं डाउट है, ऑलराइट, ठीक, वेरी गुड, नो डाउट। बाकी लोग बी एक्टिव, एवरीवन। If you have slightest doubt, you can ask me now. Okay, ठीक, चलो। तो 5 तक सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं आपके नोटबुक पे भी, राइट। सो अभी हमारे पास कौन सी टर्म बची, ये टर्म बची +2 की, तो इस +2 की टर्म को हम नीचे ले लेंगे। सो -5x + 2। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इस -5x को वी हैव टू डिवाइड दिस -5x विद दिस x। सो -5x को x से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। राइट, -5 आएगा। तो इस -5 को हम यहाँ पे लिखते हैं, वी राइट इट हियर। सो 4x - 5, यहाँ पे हमें एक क्वोशंट मिल गया या फिर डिवीजन मिल गई। देन इस -5 से हमें इस x को भी मल्टीप्लाई करना है, -5 इंटू x इज -5x, -5 इंटू n इज -5। राइट, सो -5x प्लस 5x कट जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव सब्ट्रैक्शन की वजह से साइन चेंज हो रहा है, जो कि मैं यहाँ पे आपको फिर से बार बार नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बार बता दिया ना कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर आफ्टर। ठीक, सो -5x प्लस 5x कट जाएगा, +2 + 5 बन जाएगा 7, 7 रिमाइंडर आया। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ ध्यान में रखो कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 7 आया, डिवीजन जो है वो 4x - 5 आई। राइट, सो क्वेश्चन इज 4x - 5, रिमाइंडर इज 7। नाउ लेट्स डिवाइड बाय सिंथेटिक मेथड। सो किसी को सिंथेटिक डिवीजन की मेथड समझ में नहीं आ रही थी, तो हियर वी गो। कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ p ऑफ x इज 4 - 1 2। सो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया है कि कोएफिशिएंट फॉर्म हम कैसे निकालते हैं। कैन एनीबडी टर्न ऑन हिज और हर माइक एंड टेल मी हाउ डू वी फाइंड आउट कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। कोई भी बता सकता है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, all three languages are acceptable. Just put your name in the chat box, turn on your mic and tell everyone that this is how we find out coefficient form of any polynomial. कुछ प्रोसीजर है ना उसके पहले कि हमें चेक करना होता है क्या क्या है क्या क्या नहीं, राइट। Who is going to tell? See, it is okay if you make mistake, but it is not okay you stay silent। मतलब आप बात ही नहीं करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। Who is going to take the chance? Who is going to take the opportunity? सीखो, ऐसे क्लासेस में बोलना सीखना चाहिए। ओके, इट्स अ गुड हैबिट। अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना चाहिए आंसर, राइट। चलो ठीक है, नहीं आता है, नो प्रॉब्लम। हु इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर मी? मैं बताऊंगा, उसके मेरे पीछे रिपीट कौन करेगा? पुट द नेम। नोबडी, रियली? आंसर मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ मेरे पीछे बताना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। माय इंटरनेट इज कनेक्टेड ना, like no responses in the chat box, so I was wondering. Very good, Kadambari. Okay, Kadambari, turn on your mic and tell me if you can tell, otherwise I will tell you, then you repeat. Okay, Okay, sir, I will tell. please try.
First, we have to convert it in index form and then we have to write its coefficient. Very good. That's it, in 2 lines only. बराबर ना? इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद में कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, दैट्स इट. इसमें कौन सा बड़ा आंसर था? वेरी गुड कादम्बरी. सो इंडेक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है. इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली वी डू? वी जस्ट, चलो ठीक है, मैं भी ये भी मैं पूछ लेता हूँ किसी से. अभी कादम्बरी छोड़ के कौन आंसर बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी चेक इन इंडेक्स फॉर्म? हम करते क्या है इंडेक्स फॉर्म में? कोई भी पॉलिनोमियल हमें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट डू वी चेक? सी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई ना, ये सारी चीजें आप बता पाते हो ना, सो आपको फिर से इस चैप्टर की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवीजन करने की जरूरत है. यू विल नेवर फॉरगेट इट. जब आप क्लास में से बताओगे ना, तो भूलोगे नहीं आप कभी भी. कादम्बरी इज नेवर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट इंडेक्स फॉर्म नाउ, नेवर. नॉट इन 9th स्टैंडर्ड, 10th 11th 12th डिग्री, कोई भी स्टैंडर्ड में वो भूलेगी नहीं अभी, क्योंकि उसने क्लास में बताया है सबके सामने. Who is going to tell what we do in index form? Speak up, somebody, except Kadambari, because she has already taken her chance. Nobody. Come on. All right. So see, index form में हमें क्या करना होता है students? We have to check. What we have to check? We have to check whether there any term missing. Is there any term missing? मतलब हमारा polynomial अगर x raised to 5 से शुरू हो रहा है, इज इट एक्स रेस टू 5 से शुरू हो रहा है, तो हमें चेक करना होता है कि एक्स रेस टू 4 की, एक्स क्यूब की, एक्स स्क्वायर की, एक्स की, और कांस्टेंट टर्म, ये सारी टर्म्स होनी चाहिए. अगर मान लो उसमें से एक टर्म मिसिंग है, लेट अस सपोज, ओके मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ ना, तो आपको मतलब थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि आंसर देने में. यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा एक्स रेस टू 4 प्लस 3x² प्लस 2x. सो इस पॉलिनोमियल को मुझे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अभी आप चैट बॉक्स में कोई कुछ नहीं लिखेगा, मुझे आप माइक ऑन करके बताना कि इसमें कौन सी टर्म्स मिसिंग है एंड कौन सी टर्म्स हम ऐड करेंगे कैसे. Who is going to tell? Except Kadambari, of course, because I can't ask her to tell again and again, right? What happened to you students? What happened? Okay, it's Kadambari again. See, she's willing to tell. गलती होती है तो होने दो, नो प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्टेइंग साइलेंट. ओके, कोई नहीं बताएगा, कादम्बरी कोई बताना है फिर से. ऑल राइट कादम्बरी, यू कैन टेक योर सेकंड चांस, दैट्स रियली गुड. बताओ. Yes, sir. We have to add 2 0 instead of no, we have to add 1 0 instead of 3 degree. ओके राइट. सो यहाँ पे क्यूब की टर्म मिसिंग है, तो हमें यहाँ पे 0x³ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? राइट, दैट्स इट. इतना ही है, बाकी कुछ नहीं करना है. बाकी लोग बताओ, बाकी कुछ करना है या फिर नहीं? कादम्बरी ने बताया हमें यहाँ पे कि हमें 0x³ की टर्म ऐड करनी होती है, राइट? सो इज दैट इज इट, और इज देयर एनी अदर टर्म मिसिंग? सी, स्टेइंग साइलेंट इज नॉट द आंसर. ट्रस्ट मी, वी आर नॉट गोना मूव फॉरवर्ड. हम आगे बढ़ नहीं सकते ऐसे. ओके विशाल, टेल मी, इज दैट इज इट? कादम्बरी ने जो बताया वो एक ही टर्म मिसिंग है इसमें. ठीक. सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी तो मिसिंग है. डू वी हैव कांस्टेंट टर्म हियर? नहीं है ना कांस्टेंट टर्म. सो व्हाट वी नीड टू ऐड? वी नीड टू ऐड 1 0 आल्सो यहाँ पे. सो हाउ मेनी टर्म्स आर मिसिंग देयर? नंबर बताओ, कितने टर्म्स मिसिंग है? 2 टर्म्स आर मिसिंग, राइट? 2 टर्म्स आर मिसिंग. ओके वेरी गुड. तो ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान देना है, राइट? सो ठीक है. तो कोएफिशिएंट फॉर्म से हमने इतना कुछ रिवाइज कर लिया. सो कोएफिशिएंट फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं. अभी सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है? सी, कोएफिशिएंट फॉर्म को हम एज इट इज यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. 4 को यहाँ पे लिखा, -1 को यहाँ पे लिखा, 2 को यहाँ पे लिखा, राइट? अभी डिवाइजर पॉलिनोमियल हमारा क्या था? डिवाइजर पॉलिनोमियल हमारा है x+1, राइट? सो x+1 डिवाइजर पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब हम इस राइट साइड के लाइन के राइट लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे या फिर -1? व्हाट शुड बी राइट? यहाँ पे x+1 है, तो x+1 है तो -1 लिखना होता है,
राइट। अगर यहाँ पे x -1 होता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज इस 4 को हमें एज इट इज नीचे लिखना है, राइट। इस 4 को हम एज इट इज नीचे लिखेंगे। अभी इस -1 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना आएगा, -1 इंटू 4 इज -4, सो हमको उसे यहाँ पे लिखना होता है, राइट। सो -1 -4 इज -5, -5 को हम फिर से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -1 इज 5, 2 plus 5 is 7. That's it. That's the end of example. Why that's the end of example? Because यहाँ पे 2 जो है वो last term है, that is constant term, and here also we have last term as a constant term. Constant term के बाद में या फिर constant term के right below जो आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर रहता है, बराबर ना। सो यहाँ पे 7 जो है वो 7 हमारा रिमाइंडर है, 7 हमारा रिमाइंडर है। अभी इसको हमें, ये हमारा कोएफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट है, सॉरी ये हमारा क्वोशंट है, राइट। सो क्वोशंट को हमें एज इट इज नहीं लिखना है, सो इसको हम -5 लिखेंगे और इस 4 को हम 4x लिखेंगे। हम उल्टा लिखते हैं, राइट ना। जो पहली टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म, उसके बाद में x की टर्म, उसके बाद में जो अगर टर्म रहेगी तो वो x² की, उसके बाद में x³ की, एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक। तो अभी हमने एक ही एग्जाम्पल को दो तरीके से सॉल्व किया। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस? See, we'll see conclusion here. Now we will find the relation between the remainder and the value of polynomial as follows. So in the dividend polynomial 4x square minus 4 plus 2, put x is equals to -1. Then p of x is equals to 4x square plus 4x square minus x plus 2। तो यहां पे हमें x की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो आंसर 7 आता है स्टूडेंट्स। आंसर क्या आता है? 7 आता है। सो डिड यू गॉट द रिलेशन? कोई किसी को कोई रिलेशन ऐसे पता चला कि सर आई अंडरस्टैंड दिस? ऐसा कोई है जो बताना चाहता है कि सर मुझे समझ में आया, मैं बताना चाहूंगा? क्या रिलेशन है, समझ में आया? द रिलेशन इज, सी, हमारा एक डिवाइडेंट पॉलिनोमियल था। डिवाइडेंट पॉलिनोमियल क्या है? 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये हमारा डिवाइडेंट पॉलिनोमियल है, राइट। एंड डिवाइजर पॉलिनोमियल हमारा क्या था? x+1 था, x+1 था, रिमेंबर। तो जब हम उस पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? क्या आता था हमारा रिमाइंडर? टेल मी, रिमाइंडर क्या आता था? 7 आता था। ऑलराइट, सो x+1 जो था वो डिवाइजर पॉलिनोमियल था। रिमेंबर माय वर्ड्स, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ठीक से ध्यान दो। डिवाइजर हमारा x+1 था, तो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए क्या रखा? व्हाट डिड आई पुट? आई पुट x इज इक्वल्स टू -1। x+1 था, इसके लिए मैंने x इज इक्वल्स टू -1 रखा। अगर मेरा x-2 डिवाइजर होता, अगर मेरा डिवाइजर x-2 होता तो मैं क्या रखता यहाँ पे? मेरा डिवाइजर x-2 है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद में जो वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू रिमाइंडर। समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया? ओके, कादम्बरी को समझ में आ गया, विशाल को भी आ गया, आयुष, ओके। Anybody else like who hasn't understood? ओके, सबको समझ में आ गया, सब लोग होशियार है यहाँ पे, नहीं? ठीक, that's really nice. I like when you respond. Okay. So ये जो यहाँ पे इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना, तो इस पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है मैंने आपको बता दिया है। क्या बता दिया है? कि जब हम किसी भी डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमें मिलता है इफ वी एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइजर वैल्यू। डिवाइजर की वैल्यू x+1 है, तो हम x इज इक्वल्स टू -1 रखेंगे, एंड सो ऑन। ये आपको अभी समझ में आ गया है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अभी हमारे पास हमने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, सॉल्व एग्जाम्पल, राइट। सो आई डोंट थिंक कि हमें सेकेंड एग्जाम्पल लेने की जरूरत है, सॉल्व एग्जाम्पल, और इज इट अ डिफरेंट वन? लेट मी जस्ट चेक।
Divide x raised to 4 minus 5x square minus 4x by 3 and find the remainder. So यहाँ पे डिवीजन करनी है. Okay, this division is, okay, just a second. यहाँ पे सिर्फ हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. सो सी, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली क्या आ सकता है कि आपको दो पॉलिनोमियल दिए रहेंगे और बोलेंगे कि फाइंड आउट द रिमाइंडर. सो डू यू रियली रियली नीड टू परफॉर्म डिवीजन? आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है क्या? लीनियर डिवीजन या फिर सिंथेटिक डिवीजन, या भी ये जो मुश्किल मुश्किल जो डिवीजन के टाइप्स है ना, वो हमें करने की जरूरत है? डू वी रियली नीड टू डू दैट? नहीं. व्हाट वी हैव टू डू देन? हमें डिवीजन नहीं करनी है, रिमाइंडर निकालना है. तो विल सिंपली put the value of divisor in that particular polynomial and then we get the remainder. So that's the theorem. I hope everybody has understood this, right? चलो ठीक है. So shall we take the last example for the day? Okay, so just wait. See, this is very interesting question, huh? So if you can understand this, if polynomial t cube minus 3t square plus kt plus 50 is divided by t minus 3, then the remainder is 62. Find the value of k. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ. ओके, सो t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस kt प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना लिखना है मुझे? सॉरी, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, मैं p ऑफ t लिख देता हूँ, राइट? सो अगर मैं p ऑफ t, यानी कि अभी मुझे t की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? सब लोग बताओ. व्हाट वैल्यू शुड आई पुट? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ t हियर? इट शुड बी 3, नॉट -3. ओके, ठीक है, कादम्बरी ने करेक्ट बताया. नहीं विशाल, t-3 नहीं, t-3 तो हमारा डिवाइजर है, तो t की वैल्यू हमें 3 रखनी होती है, राइट? सो p ऑफ t यानी कि मैं t की जगह पे 3 रख रहा हूं, तो p ऑफ t कितना आना चाहिए? p ऑफ t कितना आना चाहिए? हाउ मच इट शुड बी? यहाँ पे वैल्यू दी है ना, इट शुड बी 62. यहाँ पे दिया है ना 62. तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे, t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस के टी प्लस 50 इज इक्वल्स टू 62 दिया है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू 3 रख देते हैं, लाइक 3 क्यूब माइनस 3t स्क्वायर की जगह पे 3 स्क्वायर प्लस के इंटू 3 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 62 अगर मैं करता हूं यहाँ पे, राइट? सो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? के की वैल्यू मिल जाएगी. बाकी सारे वैल्यू तो हमने रख दिया है ना, राइट? सो हमें के की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? 3 क्यूब कितना है? 3 क्यूब इज 27 minus 3 into 3 square. 3 square is 9. 9 into 3 is 27. All right. Plus k into 3 is 3k plus 50 is equals to 62. So 27 27 cancel हो जाएगा. So 3k is equals to how much? 3k is equals to how much? 62 minus 50. बताओ, कैलकुलेट करो सब लोग. 50 को राइट साइड में भेजना है. 12. वेरी गुड. सो 3k इज इक्वल्स टू, ये 50 जो है वो राइट साइड में चला जाएगा, 62 से माइनस हो जाएगा, सो टिल 12. के की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू 4 आएगी. ठीक है, तो हमने कुछ भी अलग किया यहाँ पे? सी, विथ वेरी फ्यू स्टेप्स वी हैव गॉट द आंसर. अभी सब लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन यू हैव टू रिवाइज इट इन ऑर्डर टू रिमेंबर इट. ओके, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे. ठीक, सो एवरीबडी विल रिवाइज इट. एंड आपका डाउट था ना अभी सिंथेटिक डिवीजन का, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा किसी को, बट स्टिल कादम्बरी हैज डाउट अबाउट लीनियर डिवीजन, सो विल श्योरली टेक दैट. ओके, तो हम वो करेंगे. तो मुझे लेट मी जस्ट चेक हाउ मेनी टॉपिक्स देयर आर रिमेनिंग. एक से दोन, तीन. Okay, so there are two practice sets remaining, right? So once we complete those practice sets, we can take the revision. Don't worry. All right, so students, that's it for today. And I hope you have learned something new in today's class. Okay, so you people are free to leave. You can leave the class now. Thank you. Bye bye and good night. Chalo, everyone leave the class.
Yeah, chalo, bye bye, thank you, chalo, leave the class. Yeah, good night, goodbye. Vedant, Vedant, leave the class.